Yeah, good morning, everyone. I am Rohit Gupta, working as assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. I'm teaching you in electrical engineering, semester 4, in subject numerical methods, probability and statistics. Today's topic, Runge-Kutta fourth order and Laplace equation by solving Laplace equation by finite difference operator. Okay. So let's in previous topic I have discussed Runge-Kutta method of order 2, Euler method and Taylor method, Euler method and modified Euler method, which is also called Runge-Kutta method of order 2. Understood? Okay. Now so let's start. In this chapter, in this lecture, we will discuss Runge-Kutta order 4. So let's start. Runge-Kutta method of order 2, that is called Euler-Cauchy method also. Formula क्या होता है? yn plus 1 is equals to yn plus half k1 plus k2. Understood? Where k1 is equals to h f of xn yn and k2 is equals to h f of xn plus h and yn plus k1. This is also called Huynh method. This is called second order Runge-Kutta method, Euler-Cauchy method or Huynh method. Anything we have called. Formula क्या होता है? yn plus 1 is equals to yn plus half k1 plus k2. Where k1 is equals to h f of xn yn and k2 is equals to h f of x2 xn yn plus h and sorry f of xn plus h comma yn plus k1. Understood? Okay. Now, Runge-Kutta method of order 4, that is called 4-stage Runge-Kutta method. So, yn plus 1 is equals to yn plus 1 by 6 into k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 ब्रैकेट में. That means कि आप क्या करना, फर्स्ट टर्म k1 plus last k, that is k4 plus 2 into k2 plus 2 into k3. Understood है? n की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा? n equal to 0 1 2 3. how many iterations we have required? Understood? Okay, means अगर एक iteration required तो y1, 2 iterations required then y2, 3 iterations required then y3, but initial value आपको given होगा. Understood? Now where k1 is equals to h of h into f of x and yn and k2 is equals to h into f of xn plus h by 2 comma yn plus k1 by 2, means xn plus h by 2 and comma yn plus k1 by 2. k3 is equals to h f of xn plus h by 2 comma yn plus k2 by 2. मीन k1 में तो h into f of xn yn है, k2 में क्या है? xn plus h by 2 आ जाता है और yn plus k1 by 2 आ जाता है. k3 में क्या होगा? h into f of xn plus h by 2 and yn plus k2 by 2. k3 हो गया, k4 हो जाएगा h into f of xn plus h yn plus k3. Understood? Which is called classical Runge-Kutta method of order 4. This is also called classical Runge-Kutta method of order 4. Okay, now solve the initial value problem. If you are having an initial value problem, this is a short में इसको बोलते हैं IVP, that means initial value problem. Understood है? आपको कभी भी एग्जामिनेशन में दिया होगा कि solve this IVP, that means आपको क्या लिखना है? वो initial value problem. Y dash equal to x into y minus x and y of 2 equal to 3 in the interval 2 to 2.4. 2 से 2.4 using classical Runge-Kutta order 4 with step size h equal to 0.2. अच्छा आप बताओ, यहाँ पे x y of 2 है, यानी कि y of x naught होगा. इनिशियल पॉइंट क्या होगा? x naught is equals to 2 and y naught is equals to 3 in the interval 2 से 2.54. ठीक है, और आपको स्टेप साइज h कितना गिवन है? 0.2. मींस आपको f of xy कितना करना है? जैसे y dash equal to f of xy, then f of xy आपको कितना गिवन है? f of xy is equals to x into y minus x with step size h equal to 0.2 and n for, अच्छा पहले हम इनिशियल पॉइंट लेंगे तो n की वैल्यू क्या लेंगे? इनिशियली कहां n कहां पे होगा? 0. अच्छा n equal to 0, that means x naught equals to 2 and y1 corresponding y naught is equals to 3.
ओके नाउ y1 इक्वल्स टू होगा, अगर मेरे पास रंगे कुत्ता ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज yn प्लस 1 इज इक्वल्स टू yn प्लस 1/6 इनटू k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। अंडरस्टूड है? ओके अगर मुझे ये n की वैल्यू मैंने 0 पुट करी, सपोज दैट यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करी, तो y1 इक्वल्स टू y0 प्लस 1/6 k1 k प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 चाहिए होगा। दैट मींस मुझे k1 k2 k3 k4 की वैल्यू चाहिए होगी। अच्छा आप बताओ x0 की वैल्यू मिल गई, मुझे क्या चाहिए k1 k2 k3 की 4 की वैल्यू, तो k1 की वैल्यू निकाली, दैट इज h इनटू f ऑफ x0 y0 बिकॉज़ n इक्वल टू 0 के लिए निकाल रहे हैं, दैट इज तो n की वैल्यू यहां पे 0 पुट करेंगे, h f ऑफ x एंड yn होता है, तो क्या होगा h f ऑफ x0 y0, तो h की वैल्यू क्या है 0.2, f x0 की वैल्यू क्या है 2 और y0 की क्या है 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो 0.2 इंटू 2 दैट इज 0.4, तो k1 की वैल्यू क्या आई 0.4। नाउ k2 इज इक्वल टू क्या होगा h इंटू f ऑफ x0 प्लस h बाई 2 कॉमा y0 प्लस k1 बाई 2, अंडरस्टूड है? अच्छा h की वैल्यू क्या है 0.2, f ऑफ x0 की वैल्यू क्या है 2, h की वैल्यू क्या है 0.2 बाई 2 दैट इज 0.1, 2.1 हो जाएगा, y0 की वैल्यू क्या है 3 प्लस k1 की वैल्यू क्या है 0.4, तो 0.4 बाई 2 0.2 आ जाएगा, तो 3 प्लस 0.2 दैट इज 3.2, तो आंसर क्या हो जाएगा f ऑफ 0.2 f ऑफ 2.1 कामा 3.2, तो k2 क्या हो जाएगा सर, वैल्यू पुट करोगे 2.1 कामा 3.2, तो f ऑफ 0.2 x की वैल्यू 2.1 बिकॉज x इंटू वाई माइनस एक्स था ना, तो x की वैल्यू 2.1 इंटू y की वैल्यू y इज इक्वल टू 3.2 माइनस 2.1, देन आंसर क्या हो जाएगा आपका 0.4620। नाउ k3 इज इक्वल टू h इंटू f ऑफ x0 प्लस h बाई 2 कॉमा y0 प्लस k2 बाई 2, ओके व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h हियर 0.2 into f of 2.1 because 2 plus 0.2 by 2 that is 0.1, तो 2 plus 0.1 that is 2.1, y0 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस k2 is equals to 0.4620, that means by 2 करेंगे इसके में तो क्या हो जाएगा 0.231, तो 3 प्लस 0.231 that means 3.231, जब x और y की वैल्यू पुट करेंगे x के लिए 2.1 y की वैल्यू 3.231 माइनस 2.1, आंसर आ जाएगा जब हम when we simplifying this one then answer will be 0.4750। now this is your k3, okay k3 equals to 0.4750। now find k4 is equals to h f of x0 plus h comma y0 plus k3, okay x0 is equals to 2, h equals to 0.2, अंडरस्टूड है सर, ये 2.2 होगा बिकॉज x बाई 2 नहीं ना, तो ये 2.2 होगा, अंडरस्टूड है? f ऑफ x0 प्लस h y0 प्लस k3 दैट मींस 2.2 होगा और ये 3.4750 होगा, ये सही है? यहाँ पे ये 2.2 कर लेना, व्हेन वी सिंप्लीफाइंग तो आंसर आ जाएगा 0.5610, सिंपल है, ओके आंसर सही है बट वो 2.2 है, बाय मिस्टेक 2.1 लिख गया। तो y1 इक्वल्स टू वी नो दैट n की जब वैल्यू 1 पुट करी थी 0 पुट करी थी, तो y1 इक्वल्स टू क्या जाएगा y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, अंडरस्टूड है? तो y1 यानी कि y ऑफ x1 की वैल्यू क्या है 2.2 इज इक्वल्स टू y1 इज इक्वल्स टू y0 प्लस 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। नाउ पुट द वैल्यू, y0 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1/6, k1 is equals to 0.4, 2 into k2 is equals to 0.4620 and k3 equals to 0.4750 and k4 is equals to 0.5610। now this is your answer when you simplifying this one, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 3.4725। now second iteration that is n equals to 1 because हमें किस पे वैल्यू चाहिए 2.4 पे चलिए, y2 चाहिए तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, व्हेन यू पुट n इक्वल्स टू 1 तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 इक्वल्स टू 1 y1 प्लस 1/6 k1 प्लस k y2 इक्वल्स टू y1 प्लस 1/6 into k1 प्लस 2k2
प्लस 2k3 प्लस k4। अंडरस्टूड है? मींस आपको फिर इसके लिए x1 गिवन है 2.2, h गिवन है 0.2, y1 गिवन है 3.4725। x1 आपने फाइंड किया था, सॉरी, और y1 भी आपने फाइंड किया। देन आपको k1 निकालना है। k1 का फार्मूला क्या होता है? h into f of x1 comma y1। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? 0.2। f of x1 is equal to 0.2.2, y1 3.4725। okay, now put the value। तो 0 because 0.2 into x into y minus x था, x की वैल्यू क्या है? 2.2 into y की वैल्यू 3.4725 minus 2.2, and k1 is equal to 0.5599। understood है? okay, now k2 is equal to h into f of x1 plus h by 2 comma y1 plus k1 by 2। now x1 is equal to 2.2 and h equals to 0.2, y2 जब करेंगे तो 0.1 आएगा, दैट मींस 2.3 हो जाएगा। 2.2 प्लस 0.1 2.3 एंड y1 इज इक्वल टू 3.4725 और k1 की वैल्यू क्या है? 0.5599। तो 0.5599 बाई 2 जब करोगे तो 0.28 समथिंग आएगा। व्हेन यू आर एडेड तो आंसर आएगा 3.7525। जब सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 0.6682। नाउ k3 निकालोगे। k3 का फॉर्मूला होता है दैट इज h into f of x1 plus h by 2 y1 plus k2 by 2। अंडरस्टूड है? अच्छा, अब बताओ h की वैल्यू क्या है? 0.2, f of x1 की वैल्यू क्या है? 2.2 और h की 0.2 by 2, तो क्या आ जाएगा? 0.1। 2.2 plus 0.1 that is 2.3, y1 is equals to 3.47 something and k2 is equals to 0.6682 and you added, then आंसर मिलेगा आपको 3.805066। ओके, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे x into y minus x के फॉर्म में पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा k3 0.6930। अंडरस्टूड है? नाउ you have to find k4। k4 is equals to h into f of x1 plus h y1 plus k3। अच्छा बताओ h की वैल्यू क्या है? 0.2, f of x1 is equals to 2.2 plus h equals to 0.2, that means 2.4, y1 is equals to 3.7 समथिंग और k3 आपको 0.69 समथिंग, तो आपको जाएगा 4.16 समथिंग। ठीक है, आपको k4 क्या निकलेगा? सिंप्लीफाई जब करोगे तो 0.8474, बिकॉज वी नो दैट yn plus 1 is equals to yn plus 1 by 6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4 होता है। तो आप बताओ अगर मैंने यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करी थी तो y2 मिलेगा। y2 की वैल्यू क्या होगी? y1 plus 1 by 6 k1 plus 2k2 plus 2k3 plus k4। y1 की वैल्यू पुट कर दे 3.4725 plus 1 by 6 k1 equal to 0.5599 plus 2 into 0.6682, k2, and this one is k3 0.6930 and this is k4 0.8474 and you simplify this one तो आंसर आएगा आपका 4.1608। आपका क्या होगा? ये y2 होगा। आपका एक क्वेश्चन 100% आपका रंगे कुत्ता मेथड से आता है, आइदर आपका फोर्थ ऑर्डर से आएगा और सेकंड ऑर्डर से आएगा। अंडरस्टूड है? 100% सर 7.5 मार्क्स में एक क्वेश्चन रंगे कुत्ता मेथड का आता है और आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। मे भी आ सकता है कि y डैश इक्वल टू y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया था हमने सेकंड उसके लिए मॉडिफाइड आइलर के लिए, या टेलर सीरीज के लिए भी वही क्वेश्चन किया था, वैसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अंडरस्टूड है? आप इसको फाइंड कर लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, हमने ये क्वेश्चन ये हमने डिस्कस किया था जब इंटरपोलेशन कर रहे थे, तब हमने भी डिफरेंस फाइनाइट डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन डिस्कस किया था। मींस अगर आपका u i j तो i में जब h स्टेप मींस अगर h इज अ स्टेप साइज, अगर x एक्सिस में बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? u i plus 1j और घटेंगे तो क्या हो जाएगा? u i minus 1j। अगर एक आप इन पॉइंट पे खड़ो, आप स्टेयर्स पे खड़ो, एक स्टेयर्स बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेयर। अगर एक स्टेयर्स नीचे जाओगे तो क्या होगा? प्रीवियस। तो आप क्या करोगे? दिस वन इज नेक्स्ट u i plus 1 j u i minus 1 j अगर x डायरेक्शन में। तो आप बताओ डेल u i j बराबर फर्क होगा तो u i plus 1 j माइनस u i j अपॉन h होगा। अच्छा बताओ डेल 2u अपॉन डेल x2 दैट मींस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट्स अ पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसको हम लिख सकते हैं यू आई प्लस वन जे माइनस टू यू आई जे प्लस यू आई माइनस वन जे, यू आई माइनस वन कामा जे। अंडरस्टूड है? आप फिर से देखो एक बार, जब डेल टू यू अपन डेल एक्स टू में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, तो आपको उसको फार्मूला क्या होगा, यू आई प्लस वन जे, मींस जे को कांस्टेंट रखो बिकॉज आई एम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के टर्म्स में आएगा, तो जे इज अ कांस्टेंट। अंडरस्टूड है? अब आई प्लस वन करो, फिर आई जे को सब्ट्रैक्ट करो और फिर आई माइनस वन को ऐड करो। सिंपल सा फार्मूला है, आई प्लस वन को ऐड करो, प्लस के साथ आएगा, फिर माइनस आएगा आई जे के, फिर आएगा माइनस वन, अपॉन में कितना होगा एच स्क्वायर, बिकॉज ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, तो अपॉन में कितना आएगा डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर। नाउ अगर हम वाई डायरेक्शन में लें, इफ आई एम टेकिंग अबाउट वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन में क्या होगा, अगर डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू मींस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो अच्छा बताओ इसमें क्या कॉमन कांस्टेंट होगा, एक्स कांस्टेंट होगा, दैट मींस आई आई आई। अच्छा पहले क्या होगा, जे प्लस वन, फिर आई जे यू आई जे, फिर यू आई जे माइनस वन, मींस मिडिल वाले पे दो टू का मल्टीपल करके सब्ट्रैक्ट करेंगे अपॉन के स्क्वायर, ये होगा। अच्छा नाउ फिर शिफ्टेड ऑन लाप्लास इक्वेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सेकंड डिग्री ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंट टाइप होता है पार्शियल, एक होता है लाप्लास इक्वेशन, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन एंड पॉइसन इक्वेशन। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो हैं आपकी लाप्लास इक्वेशन, एलिप्टिक इक्वेशन और पॉइसन इक्वेशन। तीन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा होता है। अंडरस्टूड है? हम करना क्वेश्चन बताएंगे अभी कैसे करना है, सिंपल। अच्छा, और इनमें 7.5 का समटाइम्स ये 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चंस आपको बिकॉज दिस टॉपिक इंट्रोड्यूस इन योर सिलेबस आई थिंक दिस ईयर, तो आपको ये मिलेगा न्यूमेरिकल मेथड्स। आपको सिविल फिफ्थ सेमेस्टर में हम पढ़ते थे, पिछले सेमेस्टर में सिविल फिफ्थ में, हाँ पढ़ते थे, सिविल फिफ्थ में पढ़ते थे, उसमें आप उठा लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वहां से मिल जाएगा। मींस न्यूमेरिकल मेथड्स का जितना भी पेपर था अभी तक उसमें ये आपके प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं दिखाऊंगा कैसे। ओके नाउ लाप्लास इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन इज इक्वल टू, लाप्लास इक्वेशन इज डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू। आपने शायद ये सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा हुआ था कि लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, वेव इक्वेशन क्या होती है, हीट इक्वेशन क्या होती है, जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला रख देंगे। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू की वैल्यू क्या है, यू आई प्लस वन जे माइनस टू यू आई जे प्लस यू आई माइनस वन जे अपॉन एच स्क्वायर। डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू की वैल्यू क्या है, यू आई जे प्लस वन, आज हम आई एक्स वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि एक्स एक्सेस में कांस्टेंट होगा तो आई हो जाएगा जे प्लस वन माइनस यू आई जे, टू इंटू यू आई जे प्लस यू आई जे प्लस वन अपॉन के स्क्वायर इक्वल्स टू 0। So for h equal to k means step size of both x and y are same, तो h equals to k हो जाएगा। आप बताओ इसको क्या लिखोगे, टू यू आई प्लस वन जे माइनस टू इंटू यू आई जे प्लस यू आई माइनस वन जे, आपने ये लिखा। एच स्क्वायर के इक्वल टू है तो ये एच स्क्वायर पूरे में ले लेंगे, तो यू आई जे प्लस वन माइनस टू इंटू यू आई जे प्लस यू आई जे प्लस जे माइनस वन होगा, सॉरी सर ये जे माइनस वन होगा, ठीक है, जे माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब एच स्क्वायर को ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब हम ये देखो माइनस टू यू आई जे एंड माइनस टू यू आई जे, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू यू आई जे, तो हम डिफरेंट साइड ले जाएंगे तो 4 इंटू यू आई जे इक्वल्स टू यू आई प्लस वन जे प्लस यू आई माइनस वन जे प्लस यू आई जे प्लस वन प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा सर, यू आई जे माइनस वन। जब हम यू आई जे की वैल्यू निकालेंगे तो 1/4 यू आई प्लस वन जे यू आई माइनस वन जे यू आई जे प्लस वन प्लस यू आई जे माइनस वन। अच्छा, सेंट्रल वैल्यू फाइंड बाय बाउंड्री वैल्यू, मींस आपको पता है क्वेश्चन कैसे आएगा, एक ग्रिड फॉर्म का क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको इसमें निकालना है u1 u2 u3 u4 की वैल्यू निकालना है और आपको ये लाप्लास इक्वेशन गिवन है। मींस आप पहले क्या होगा, या तो इवन ऑर्डर का होगा
4 वैल्यूज निकालनी होगी, u1 u2 u3 u4, या तो फिफ्थ ऑर्डर का होगा, फिफ्थ स्टेप का होगा, सॉरी मैं बताता हूँ क्या, दैट इज कॉल्ड 5 पॉइंट मेथड, या तो 4 पॉइंट मेथड का आपके एग्जाम में आएगा या तो 5 पॉइंट मेथड का आएगा। अंडरस्टूड है? मींस अगर फोर्थ पॉइंट का आया, 4 पॉइंट का आया, 4 पॉइंट मेथड में आपको u1 u2 u3 u4 की वैल्यू निकालना है। अगर आपको 5 फिफ्थ ऑर्डर का आया तो उसको ही बताऊं, ठीक है? अच्छा, दिस इज योर लाप्लास इक्वेशन फॉर बाउंड्री वैल्यू एज सोन एज 1 1 2 3 4 5 5 5 4 3, this one is called u1 u2 u3 u4, understood? अच्छा, solution ui j equals to 1 by 4 ui plus 1j plus ui minus 1j ui j plus 1 plus ui j minus 1। now अच्छा आप बताओ, जब भी हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आप कैसे फाइंड करोगे? आप इसको जब भी आप फोर्थ ऑर्डर का आया, जैसे 4 पॉइंट का आएगा तो आप क्या बनाओगे? एक बड़ा प्लस साइन बनाओगे। जब आप प्लस साइन बनाओगे तो आपको u1 मिल जाएगा। u1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपने जब व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ प्लस साइन, तो आप बताओ ये प्लस है, ये प्लस, बराबर? तो u1 इज इक्वल टू 1 by 4 u2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस u3, यही मिलेगा। जब आप प्लस साइन u1 के अराउंड कंस्ट्रक्ट करोगे तो ऐसे ही बनेगा। कैसे बनेगा? 1 प्लस u3 1 प्लस u2 कर दिया, तो व्हेन 2 प्लस, ये क्या हो जाएगा? u1 इक्वल टू 1 by 4 2 प्लस u2 प्लस u3, मिल गया। नाउ सेकंड वन u2, जब आपको u2 कंस्ट्रक्ट करोगे तो क्या होगा? प्लस साइन बनेगा। जब आप प्लस साइन बनाओगे तो u2 इक्वल टू क्या आएगा? दैट इज 4 प्लस u1 4 प्लस u1 प्लस 2 प्लस u2, सॉरी 2 प्लस u4 2 प्लस u4, तो 4 प्लस 2 दैट इज 6 u1 प्लस u4, u3 is equals to 1 by 4 u4, सिमिलरली मिल जाएगा बिकॉज u3 is equals to 1 by 4 u1 plus 4 2 plus u4, तो क्या हो जाएगा? 4 plus 2 plus 4 6 आ जाएगा। सिमिलरली 5 plus 5 10 हो जाएगा, u3 plus u2 हो जाएगा। अच्छा, दिस मेथड कैन बी सॉल्व बाय गॉस सीडल मेथड। आप गॉस सीडल मेथड मैंने एक लेक्चर में किया था, आप उससे सॉल्यूशन कर लेना इसका। इससे u1 u2 u3 u4 की वैल्यू मिल जाएगी। आप u0 आपको इनिशियल वैल्यू रिक्वायरमेंट होगी, आप इनिशियल वैल्यू u2 की मान लेना 0, u3 की मान लेना 0, तो आपको u1 क्या मिल जाएगा? अरे गॉस सीडल मेथड तभी सॉल्व करते हो ना जब आपको इनिशियल वैल्यू गिवन होती है। तो आप क्या करोगे? u2 की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 मान लेना, u2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड u3 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो u1 ऑफ 0 मिल जाएगा आपको, वो क्या होगा? 0.5। अच्छा आप बताओ, u1 ऑफ 0 मिल गया, आपने u2 u3 और इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? u2 इज इक्वल टू 1 by 4 4 प्लस u1, u1 की वैल्यू क्या होगी? u1 ऑफ 1 पुट करोगे ना, तो u1 ऑफ 0, तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? 2.5 प्लस 2 और u4 ऑफ 0 मान लेना 0। अंडरस्टूड है? आपको इससे वैल्यू मिल जाएंगी। आप किसको किसको 0 मानोगे? u2 u3 और u4 को एक बार 0 मानोगे। गॉस सीडल मेथड से अप्लाई सॉल्व होगा। अंडरस्टूड है? ओके, सॉल्व बाय गॉस सीडल मेथड। इस लेक्चर में मेरे पास टाइम कम है, अदरवाइज मैं इंट्रोड्यूस करता है कैसे गॉस सीडल मेथड यूज करेंगे। अंडरस्टूड है? लाप्लास इक्वेशन 5 पॉइंट का होगा तो उसमें 2 स्टेप अप्लाई होंगे। अगर 5 पॉइंट है तो ये ऐसा बनेगा, एक k1 k2 k3 k4 मिलेगा, g1 g2 g3 g4 मिलेगा, सिमिलर वैल्यू रखी होंगी, u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9, मींस 5 पॉइंट मेथड है। अगर 5 पॉइंट मेथड है दैट मींस आपको सेंट्रल वैल्यू क्या है? दैट इज u5। तो u5 जो निकालेंगे तो ये कैलकुलेट होगा बड़े वाले प्लस साइन से। जब बड़ा प्लस साइन होगा तो k2 प्लस c2 प्लस f2 प्लस g2 बाई 4 मींस आपको u5 मिल जाएगा। और u1 कैसे मिलेगा? वो आपको डायगोनल मेथड से मिलेगा। अंडरस्टूड है? u1 u3 u7 u9, अंडरस्टूड? और u5 आपको मिलेगा, u5 मिल गया, u1 u2 u1 की वैल्यू मिल जाएगी 1 by 4 k2 plus f2 plus u5 plus f4। in next lecture we will discuss the 5 point method। simply इसको आप गॉस सीडल मेथड से सॉल्व कर लेना। गॉस सीडल मेथड में आप इसको पहले क्या लोगे? u2 of 0 is equals to 0
u3 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड u, तो आपको u1 ऑफ 0 मिल जाएगा 0.5, अंडरस्टूड है, 2/4 से 0.5। अब u2 निकालना है, u2 ऑफ 1 निकालना है, तो 4 प्लस 6 हो जाएगा। तो u1 ऑफ 0 की वैल्यू आपने क्या ली थी, u1 ऑफ 0 अपने मान निकाला था आपको 0.5 प्लस 2, 6 प्लस 0.5 दैट इज 6.5, और u4 ऑफ 0 मान लेना 0, तो 6.5/4 से निकाल लोगे। फिर आप निकालोगे u3 ऑफ क्या निकलेगा, ये 1 निकलेगा, ये u2 ऑफ 1 निकला और ये u3 ऑफ 1 निकलेगा, तो 1/4 u4 ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी 0 प्लस 2, ये 2 प्लस 4 दैट इज 6, तो u1 ऑफ 0 क्या हो जाएगा दैट इज 0.5। या तो आप मान लेना कि u1 ऑफ 0, u2 ऑफ 0, u3 ऑफ 0, u4 ऑफ 0 0 है, फिर आपसे u1 ऑफ 1 निकल आएगा यहां से, फिर u2 ऑफ 1 यहां से निकल आएगा, u3 ऑफ 1 यहां से निकल आएगा, u4 1 ऑफ यहां से निकल आएगा, फिर से निकालना u2 ऑफ 1, फिर u1 ऑफ 2, u2 ऑफ 2, u3 ऑफ 2, आपको 3 आइटरेशन तक करना, दैट्स इट। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। In next lecture, we will discuss the Laplace equation, solving Laplace equation by finite difference operator using finite difference operator 5 point के लिए हम next lecture में करेंगे। Okay, thank you so much.